डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सीरीज देख रहे थे, जिसमें ये थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। किसने दिया था ये लॉ? इट इज गिवन बाय रिचर। इट इज गिवन बाय रिचर। स्टेटमेंट क्या था इसका? इट स्टेट्स दैट when two element combine separately with a fixed mass of third element, दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन करता है, देन द रेशियो ऑफ देयर मासेज इन विच दे डू सो, तो उसका जो मास रेशियो होगा, जिस रेशियो में वो उस थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करेगा, और इज आइदर सेम और सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर। देखिए, इस स्टेटमेंट को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा कि सर अगर आप यहाँ पे ले लें सल्फर और ये है ऑक्सीजन, ये दोनों ही एलिमेंट फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करता है। व्हेन सल्फर कंबाइन विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स H2S। व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स H2O। सी हेयर, sulfur combine with hydrogen 2 gram of hydrogen, oxygen also combine with 2 gram of hydrogen. So what is the mass ratio of sulfur and oxygen? So mass ratio of sulfur and oxygen कितना होगा दोस्त? ये होगा सर, सल्फर इज टू ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा, दिस इज 32:16, or either you write 2:1. This is the mass ratio of sulfur and oxygen when it combine with a fixed mass of hydrogen and forms their compound. आगे ये स्टेटमेंट बोलता है कि when they combine with each other, तो जब सल्फर और ऑक्सीजन अपने आप में कंबाइन करेगा तो ये कंपाउंड बनाएगा SO2. Then the ratio of sulfur and oxygen in this SO2 compound, what is the ratio? Mass ratio is sulfur, mass ratio of sulfur and oxygen in SO2 कितना हो जाएगा? Sulfur is to oxygen is equal to 32:32. This mass ratio is 1:1. So mass ratio of sulfur and oxygen is 1:1. Okay, 1:1. So law of reciprocal proportion suggests that these mass ratio and this mass ratio is related with each other. ये जो mass ratio है ना सर, ये दोनों mass ratio एक दूसरे से related है। कैसे related है? Either these two mass ratio are same or whole number multiple of each other. So when we multiply this mass ratio by 2, you get the mass ratio of this. Got it? So statement क्या था? Statement था कि when two element combine with a fixed mass of third element, then the mass ratio of these two element in which they do so is either same or some whole number multiple of mass ratio of these element when they combine with each other. So mass ratio of sulfur and oxygen when they combine with each other is 1:1, and the mass of sulfur and oxygen when they combine with a fixed mass of hydrogen is 2:1. So these two ratio are related with multiply by 2. When this mass ratio is multiplied by 2, you get the mass ratio of sulfur and oxygen, that is 2:1. Okay, so in this case we see the mass ratio of this sulfur and oxygen is whole number multiple, multiply by 2, you get the sulfur and oxygen, whole number multiple of the mass ratio of sulfur and oxygen when they combine with a fixed mass of hydrogen. एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें मास रेशियो सेम आएगा। See, let two elements carbon and oxygen, they combine with a fixed mass of hydrogen. We know carbon combine with hydrogen to form CH4 and oxygen combine with hydrogen to form H2. Okay, and when these two combine with each other it forms CO2. So when we find out the mass ratio of carbon and oxygen, first of all we have to fix the mass of hydrogen. Let's say mass of hydrogen is 2 gram. In CH4 carbon and hydrogen mass ratio is what? Carbon and hydrogen mass ratio is what? It is 12:4. You see,
12:4. Here 4 gram of hydrogen combined with 12 gram of carbon. So 2 gram of hydrogen combined with when mass of hydrogen atom is taken 2 gram, then mass of carbon कितना हो जाएगा दोस्त? Then mass of carbon is equal to 6 gram because 4 gram of hydrogen combined with 12 gram of carbon. So 2 gram of hydrogen combined with 6 gram of carbon. देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको ये मास फिक्स नहीं दिया रहता है, आपको फिक्स करना होता है। सेम मास से ये दोनों एलिमेंट कंबाइन नहीं कर रहे होते हैं तो आपको फिक्स्ड करना होता है ये मास। सो कार्बन हाइड्रोजन का मास अगर हमने 2 ग्राम कर दिया तो कार्बन का मास इस बार 6 हो गया। ऑक्सीजन का मास 2 ग्राम हाइड्रोजन से कार्बन कितना ऑक्सीजन कितना कंबाइन कर रहा है? 16 ग्राम। सो व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन? सो मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? कार्बन इज टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6:16। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग 6:16 करेंगे, ना कि 12:16। 6:16 क्यों? क्योंकि सर हमें मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम फिक्स करना है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है। तो यहां भी हमें हाइड्रोजन का मास जब हम 2 ग्राम फिक्स कर लिए तो कार्बन का मास हमारा 6 ग्राम आ गया। तो इट इज 6:16। इट बिकम्स, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 2 3 जा 6 एंड 8 2 जा 2 8 जा 16, 3:8 आ जाएगा सर। अब स्टेटमेंट आगे क्या कहता है कि व्हेन दे कंबाइन विथ ईच अदर इट फॉर्म CO2। सो व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2? मास रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2 कितना हो जाएगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन 12 ग्राम मास ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन, इट इज इक्वल टू 3 4 जा 12 एंड 8 4 जा 32। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन का मास रेशियो देखिए यहां भी 3:8 आता है। सी द रिलेशन, दीज टू आर इक्वल्स। अब इस दोनों रिलेशन को देखिए, यहां पे मास रेशियो इक्वल आ रहे हैं। तो गाइस हमारा स्टेटमेंट क्या था? फिर से एक बार स्टेटमेंट को देखिए कि रिचर्ड्स ने जो स्टेटमेंट दिया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस का, बोला इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, two element combined separately with the fixed mass of third element, then the ratio of their masses, तो उस केस में जो इस दोनों एलिमेंट का मास रेशियो होगा that is either same और whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तब जो मास रेशियो होता है, इस दोनों मास रेशियो में रिलेशन है, either ये दोनों एक दूसरे के होल नंबर मल्टीपल के बराबर होंगे या फिर सेम होंगे। तो सेकेंड एग्जांपल हमने जो लिया है उसमें कार्बन ऑक्सीजन का मास रेशियो देखिए दोनों केस में सेम है। फर्स्ट एग्जांपल में होल नंबर मल्टीपल मल्टीप्लाई ऑफ 2 के बराबर है। आई थिंक लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस आप लोग समझ गए होंगे। सो गाइज इफ यू रियली फाइंड दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, like and subscribe the channel and hit the bell icon for notification of next video.